The fancy cars won't stop, yeah? No, I think we're gonna rob the dash. Yeah. पहले इस बंदे ने बोला था कि गाड़ी वाड़ी मिल जाएगी, चिंता मत कर। अब भाई बोलता है नहीं कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ 6:15 हुए हैं और 6:15 में देखो पैसा अंधेरा हो गया। ऐसी है भाई मेरी मैक्सिको के अंदर एंट्री। रात के घने अंधेरे में दोनों तरफ जंगल है। कुछ ज़्यादा ही वो दोस्ताना हो रहे हैं भाई। अभी एक बंदे को और पिकअप किया इन्होंने और sorry, what's your name? Alden. And you do herbal like remedies. Okay. For all disease. For all disease. Disease, anyone. Ah, that's good, man. We work to get results. Ah. You know, 2-3 days you done different. You feel good. Ah. I ship out to the States too. That's good, man. Disease. And so what's the name of this language you speak? Like it's we speak Creole. Creole. Our language is between English and African. And African. It's our one language. It's a mixture. It's a mixture. We don't talk Patois, but our language is Creole. Creole. And some people speak Spanish also or no? No, this is Central America, so we have all languages from around Central America. We have. So you can speak Spanish? I speak a little bit. Poquito. It's mostly poquito, but I could say mostly anything that I need in Spanish. Ayúdame por favor. No hablo español. Nada. Yo tengo hambre. Oh, my friend? I am hungry. Okay. Buenas noches. Good night. It's good night. Buenos días is good day. Buenas tardes. And buenas tardes is no. Yeah. And yo tengo hambre, meaning I am hungry. Yeah. But today, we are heading to Casa. Bueno, 3 different. Start back over. Start back. Start one over. Coronavirus, I use 3 different medicine. I use one for the immune, that name Atoni. I use one for the lung disease, and I use one for mucous membrane. For mucous membrane? Yeah, the virus attacks the lungs and it fills it with mucus. That's why you restrain from oxygen, from breathing, no? When I give that within 2 days, everything is gone. Clear up, proven. Oh right man. Here, I did a lot for people here. Oh, that's good, man. भाई साहब बता रहे हैं कि भाई साहब क्योर कर सकते हैं HIV को और भाई साहब कैंसर भी क्योर कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि HIV, that's how we get it. For HIV. He has HIV? No, that's how they herbs. Okay. That's how we do. Which herbs do you use? I use 5 different herbs in every medicine I give. We're doing the same thing. I got 2 types of healing. Medical science, which is fake, artificial. And So medical science is fake? Yep. That's fake. It's artificial. Then you have medical property, which is organic, natural. The natural one, yeah. Natural one, not blend with the body, because the body comes from the same place the herb comes. Yeah, you're right. But Because we are science, natural. The science one is no chemical. It's man-made. Yeah, no good. You're right. Because we are also natural, so yeah. It's natural. So with the HIV, I use 3 things for the first $1,500. Nothing. Call me, and I give him the medicine. 2 days time, the man is up and going to say, better to give me the $1,500. Oh man, that's amazing. I'll give it a couple $100. Yeah. We got living proof right here in Belize. तो भाई ये मानते हैं कि ये भाई कुछ भी हो ना उसको ठीक कर सकते हैं। तो मुझे लगा था इस टाइप के बंदे अपने इंडिया में ही होते हैं। भाई इस टाइप के बंदे आपको पूरी दुनिया में मिल जाएंगे जो लगता है सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा इन बाबाओं के चक्करों में ना पड़ें। शुक्र है इन भाइयों को मेरी भाषा समझ नहीं आती, भाई अच्छे हैं, लेकिन ये जो क्लेम कर रहे हैं ना यार, वो उसको मैं सही नहीं मानता हूँ।
और भाई पता नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेडिकल साइंस बहुत एकदम सही है, लेकिन वो भी गलतियाँ वो भी करती है। लेकिन इन बीमारियों का क्लेम करना कि हम ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो आप इन बाबा बाबाओं के चक्कर में ना पड़िए। मेरे बाबा ही हैं साथ में, तो अब इनके मुंह पे तो मैं बोल नहीं सकता यार। बंदा बेचारा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है, लेकिन बोल रहा है कि भाई ने कोरोना वायरस को 2 दिन में ठीक कर दिया था यहाँ पर। So during COVID time, you cured many people. A lot of people in Coruscant in the station, the police they had a breakout. I went and I started treat all of them. 2 days time they're up and going. Oh man. All cough, He's stop. a herb man. Yeah. He's a help man. Yeah. Right now I'm going to get herb to make medicine for the I'm curing Heart disease. pressure, nerves. Have you tried his medicines? He is from the same village. From the same village. Everybody that are suffering from pressure and certain disease, he's the guy that we all go to. But I want to go to him because recently I started to have a little pressure, but it's from the alcohol. So I'm going to deal with him. Okay, thanks a lot, man. Let me take my. You have my number, right? Yeah, I will take other bag also. After nearly 20 years, brother, that team supposed to be for you. You need to have an accident supposed to. Thank you, man. Bye bye. Take care. Okay, thanks you. So now there's a bus or what? See when we pass through when I get in. And how far is the border from here? About 48 miles. Come For- from here to Coruscant, it's Like around 100 kilometers? less. Less. 40 miles. So 40 miles is around. देखते हैं भाई. Oh, it's around 82 kilometers from here. It's Kamalita. Yeah. तो भाई अभी मैं पहुंच चुका हूं कामलीता में, और यहाँ से जो बॉर्डर है वो पड़ेगा 82 किलोमीटर्स, लगभग 30 से 35 माइल्स। जो अपने फ्रैंक भाई थे वो मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए। उन्होंने भाई उनकी पत्नी का फ़ोन आया था, और भाई उनकी पत्नी उनको ऐसी गालियाँ निकाल रही थी, मेरे को समझ आ गया था। तो ये अपने बाबा जी भाई साहब जो सारी चीज़ों को ठीक करते हैं। बंदे को देखो नॉलेज तो है यार, आप इस टाइप की चीज़ें करते हो ना, आपके पास नॉलेज तो होनी चाहिए, वरना फिर लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे। तो अभी जब मैं इनसे बात कर रहा था यार, वो अंग्रेज़ी वाले शब्द में बोल नहीं सकता। मे बी ही इज़ गोइंग, आई कैन आस्क हिम। So how far you are going? 5 miles from here, Orange Walk. 5 miles from here. Okay. Then the next town is Coruscant, 30 miles from Orange Walk to Coruscant. Then from Coruscant, it's 9 miles to the border. To the border, to the frontera. From there in Mexico, Mexico, yeah? Quintana Roo, Mexico. Yes. But you have a bus at the over go direct to Cancun, to Merida. No, I'm going to maybe I want to go to this place, Valladolid. It's near to my plan to go to Valladolid. It's near. Valladolid, It's near to Chichen Itza. I'm going to Chichen Itza. Mexican side. Yeah, Mexican side. This is the old Maya ruins. Maya. Delhi city से मेक्सिको बॉर्डर तक जाने वाली जो बसेस हैं वो सुबह ही निकल जाती हैं। लास्ट बस आई थिंक 12 बजे के आसपास मैंने जाते हुए देखा था, जब मैं सिटी के अंदर जा रहा था ना, तब उस बस के ऊपर लिखा हुआ था चितुमाले, जो बॉर्डर टाउन है। लेकिन अब यहाँ से भाई ने मुझे 80-90 किलोमीटर के लिए लिफ्ट दे दी, मैं आधे रास्ते तो आ चुका हूँ। अब यहाँ से 82 किलोमीटर और बचा हुआ है, और वहाँ के लिए मुझे और देखनी है लिफ्ट, अगर मिल जाए तो। वरना पीछे एक बस आ रही है, वो बस मुझे एक टाउन फिर अगले टाउन ऐसे करते करते बस लेके जानी पड़ेंगे। छोड़ेगी ऑरेंज वॉक में, और ऑरेंज वॉक से फिर मुझे एक और बस लेनी पड़ेगी, वो छोड़ेगी मुझे क्लोरोजाल में, और वहाँ से फिर एक और बस लेनी पड़ेगी, वो मुझे छोड़ेगी बॉर्डर के ऊपर।
शाम के 4:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, पता नहीं कितना टाइम और लगेगा। भाई ये जो ऑरेंज वॉक थी ना, ऑरेंज वॉक चली गई है इधर वो शहर, और अब मुझे जाना है कोरोजाल, और कोरोजाल से आगे मैक्सिको पड़ेगा, तो मुझे लिफ्ट लेनी पड़ेगी यहाँ से। पर बंदे मेरे से पहले और भी वेट कर रहे हैं यार। जब बंदे और वेट कर रहे होते हैं ना तो चांसेस कम हो जाते हैं लिफ्ट मिलने के थोड़े। देखते हैं, बस आएगी तो बस में चले जाएंगे, वरना देखेंगे यार। Hey man, for Mexico Corozal from here only, yeah? Where you wanna go? Mexico. Through there, oh, yeah, that is shortcut. That's the shortcut, but you could go through there too. Same thing, but only car right there going through the tongue. But Right there, that is bypass, quick. He can drop me? That's a taxi, but that's Taxi. that's a taxi. That's a taxi? Yeah, but that's not going, that's for Orange Rock. That's okay. That's a taxi. Yeah. No, I'm not wanna go in taxi. Maybe someone going that way. Yeah, right now something going to go. You just follow me, I take you. I'm going to Corozal. From Corozal straight to the border. Yeah, straight to So the there's border. no Yeah. bus from here? Yeah, but the city bus they go if you want. That going to Corozal to the terminal. From the terminal straight to the border. So I will take this one. Yeah, This Corozal? Yeah, Corozal, hear him. Woo! He gone. If it don't have, you move too quick. Oh man. Maybe I'll find some ride then. Alright. Maybe they will go this one? You guys also going Corozal? Yeah, we live in Corozal. Maybe. We live in Corozal. We just work here. We just work here. We are going back to Corozal. From Corozal, it's closer to Mexico. How far? Maybe Yeah, like a half an hour. half an hour. Where are you coming from? Pakistan? No, from India. India? Yeah. You coming from? Fucking far, man. That's so much 10 hours traveling. No. Today I'm coming from Belize. तो भाई ये जो भाई हैं ये भी वेट कर रहे हैं लिफ्ट का ही। You're gonna take us to India. Yeah, what's your name, man? I'm Roberto. Nice to meet you, Roberto. Yeah. And what's your name, man? हाँ? Hotne. तो ये दोनों भाई, so you guys are also waiting for the car, yeah? For the ride. Got a video. He's going? No, you wanna go on the back? We can sit there. I'm not going on the back. भाई कह रहे हैं कि तू यहाँ से ही आ गया, बस बहुत टाइम लगाती है। भाई 5 सालों से ऐसे कर रहे हैं ये। सही है, मैं ठीक है भाई, इनके साथ लिफ्ट लेके चले जाएंगे। The fancy cars won't stop, yeah? No, I think we're gonna rob the gas. Yeah. They stopped. He stopped. Let's go then. Hi. Okay. Are you going to the Colosseum? No, San Narciso. San Narciso fan there, you can take him. Thanks a lot, man. Nice riding. Thank you. शायद आधे रास्ते के लिए वापस से लिफ्ट मिल गई है। Getting close. Another guy just passed just now would have stopped, but he just fly and gone. He's another guy from Corozal. From Corozal. We will go there on the bump and stop again. Yeah, on the bump people. Reach Corozal. But if sometimes they have him, sometimes they have him. Sometimes they have a little bus Which goes to border? $3 they charge you from here to Corozal. From Sometimes Corozal. we catch it too, but right now it's not around. So it's faster you are right. The bus will be in the there. Long time. The fucking bus take 2-3 hours, man. And from here to the border, how much? Maybe 30 minutes now? Yeah. Now Like 45 minutes. from here? Uh-huh. If I get a direct, can I get a direct bus also from? Yeah, you can get it. See the bus there, but the bus is more there. Takira. Oh, people here speak Spanish? Yeah. Ah. Spanish, English.
All kind of shit. German. You speak German. German who? Yeah, me. German. Which Haijin Singh? See, this is a van, but I don't know if he's going to go. Sometime go back. He's going to Corozal. He's going to Santa Clara now, yeah? भाई आज का दिन है ना बड़ा ऊपर नीचा सा ही हो रहा है. अब हो रहा है तगड़े सीन. जिस भाई ने अभी हमें पिकअप किया था उसने हमें यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है और यहाँ से जो अब बॉर्डर है वो 45 किलोमीटर रह गया है और यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करते हैं लोग माइल्स के अंदर. जैसा आपने देख लिया होगा. अभी हम ब्रेकर के पास खड़े हैं. ब्रेकर के ऊपर भाई व्हीकल थोड़े स्पीड कम होती है तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं रुकने के. और इन दोनों भाइयों के साथ मैं लिफ्ट लेके आगे से ट्रैवल कर रहा हूँ. So will I be able to get to Chetumal today or no? Yes, man. Yes. Yeah. You guys work in Coca-Cola, yeah? Coca-Cola. So you guys do like packing and what kind of stuff? All kind of things. Packing, driving, all kind of things. Anything like So you can have a lot of Coca-Cola at your home, yeah? Corozal. Yeah, you want where you want a truckload? Ah. Yeah, I could take a truckload to India if you want. That's good, man. अरे भाई अंधेरा होने को आया है. मैं सोच रहा था मैक्सिको में अंधेरे के टाइम पे एंट्री नहीं लेनी है लेकिन अब मेरे पास कोई चारा नहीं है. रात को ही एंट्री लेनी पड़ेगी अंधेरे में. इस टाइप के छोटे छोटे गांव हैं यहाँ पे. मौसम बड़ा प्यारा है. दिन में गर्मी रहती है लेकिन जैसे ही सूरज छिपता है ना यहाँ पर तो मौसम अच्छा हो जाता है. दिस बस इज गोइंग टू बेलीज? नो मैन. It's going from Corozal? No, that's like going up to this. Yeah, going so that's good. Corozal. Frontera. Frontera is border, yeah? Yeah, Frente frío, no? He's taxi or normal car? ¿Dónde? San Narciso. Border, Frontera. He's going? Yeah. Are you going to the Mexico border? Oh no, only here, San Narciso. Okay, thank you. ना भाई सबके सामने कर रहे हैं कि पंगा क्या है कि अब बस नहीं मिलेंगे मुझे तो जो भी मिल जाए उसी में बैठ के जाना पड़ेगा. Right now they're supposed to go. This one is going? Yeah. To Corozal? Should. Not sure. No, but I think sometimes they go for the last one more trip. So how much they charge? Like $3, yeah? Yeah, that's nothing. Yeah, you are right. But they are not going. What the hell? Fuck, that's a bitch. Hey, Bas. Vamos a Huevo. Mexico border? La salida. Aquí está un poquito rough para him. Just 1 minute. Namaste. Namaste. Namaste, you gotta tell her namaste. Namaste. Yeah. Hola. Hola. Okay, aquí está más rápido para लोग बड़े मस्त हैं यार. अभी हमारे इससे पहले एक छोटी मिनी बस में बैठे थे. वो एक घंटे चला रही थी. उस एंटी ने हमें 2 किलोमीटर के लिए ड्रॉप किया. अब ये भाई मिल गया है लेकिन ये वाला तो मिनी बस वाला है. आई थिंक ये पहुंचा देगा काराजोल और काराजोल से ही आई होप मुझे एक मिनी बस या फिर अगर नहीं मिलती तो फिर मैं लिफ्ट लेके जाऊंगा. रात को शायद मैं मैक्सिको के अंदर एंट्री लेने वाला हूँ अगर सब चीज़ें ऊपर नीचे हुई तो. वरना तो यार अभी ज़्यादा दूर तो नहीं है मैक्सिको यहाँ से. So from where, what do you think, from where I can get something? That taxi will take you, but you got to pay them money. Which one? From there? Yeah, they say when you go to the border. Those are going to the border? Yeah. Okay, thanks, sir, man. Thank you. Right now, go there. Okay. But these... Only they will go to the border because they... the police is going to the border? The police is punk. They're supposed to... Huh? Those van is from lone villages. Those village where we were standing. Okay. It's from the village, but they only come
they go to the border, but earlier they don't go those hours. But we do not see no taxi. You know, right here, there, but everyone is busy. See one there, and you want to go with their guide, yeah? Oh, no, maybe this one? No, that will go to the village. That's from the village. Maybe I can ask these cars, like the cars. Well, you are on your own now. I already reached out. Yeah, what do you think I can find here? You gotta pay taxi. No, it's okay. How much they will charge? I have like... I tell about $30. Right now, only 21 left. Well, I don't know. It's you. Okay, thanks a lot, man. Thank you. Take care. Yeah, bye-bye. This one, this way or this way? Border. Well, straight up there, Okay. Thanks a lot, man. I'll try to find something. पहले इस बंदे ने बोला था कि गाड़ी वाड़ी मिल जाएगी, चिंता मत कर. अब भाई बोलता है नहीं कुछ नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. सही है भाई. बंदे को झूठ बोल के मुझसे मिले भी गए. बंदे को भी शायद आइडिया नहीं था कि क्या है क्या नहीं है. अब भाई मैक्सिको बॉर्डर यहाँ से 13 किलोमीटर रह जाता है और पता नहीं टैक्सी लेके जाना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा. हम ट्राई तो कर रहा हूँ कोई ना कोई लिफ्ट मिल जाए 13 किलोमीटर के, लेकिन रात के टाइम पे शायद नहीं मिलेगी तो मैं टैक्सी ले लूँगा यार. ट्राई तो करूँगा मैं पहले लिफ्ट के लिए. भैंस की पंगा पता है भाई क्या है? पंगा एक ये भी है कि यहाँ पे मैं जितना लेट करूँगा आगे फिर मेरे को मैक्सिको में भी वो जो शहर है वो थोड़ा आगे पड़ता है, तो वो भी देखना पड़ेगा. लेकिन वो भाई कह रहा है कि 7 बजे एक बस जाएगी. मैं देखता हूँ इन गाड़ियों को रुकवाने को. ये भाई जाएंगे क्या? हेलो, आर यू गोइंग टुवर्ड्स बॉर्डर? नो सर. ना, थैंक यू. एक तो लोग यहाँ पे मुझे वो भी समझ रहे होंगे डंकी वाला. और यार बेलीज़ में डंकी करने कौन आता होगा? एक भाई ने बोला है कि अभी भी चांस है, एक बस जाएगी 7 बजे के आसपास, तो 7 बजे वाली बस में मैं जा सकता हूँ. उससे पहले मैं गाड़ी में लिफ्ट लेता रहूँगा, ट्राई कर लूँगा. अगर नहीं मिली तो भाई अपने फिर वो बस लेके जाना पड़ेगा. अरे रोक ले यार. अरे रोक ले भाई. बॉर्डर मैं पक्का डंकी वाला लग रहा हूँ इसमें. बॉर्डर फ्रंटेरा. बॉर्डर बोलना है ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, 2 आर आ जाते हैं ना बीच में. बॉर्डर फ्रंटेरा अच्छा है, फ्रंटेरा इन स्पेनिश. यार एक तो इनको अपनी टाइम जोन चेंज करने की ज़रूरत है. सिर्फ 6:15 हुए हैं और 6:15 बजे देख रहा हूँ ऐसा अंधेरा हो गया है. दिस इज़ नॉट फेयर. और सुबह इतनी जल्दी हो जाती है यहाँ पर. ट्रॉपिकल जोन है तो ज़्यादा टाइम में फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे ज़्यादा 1 घंटा हो जाता होगा सर्दियों के उसमें. लेकिन इनको अपनी टाइम जोन चेंज करनी चाहिए आई थिंक. भाई मुझे एक काइंड ऑफ टैक्सी मिल गई है. वैसे जा तो वहीं पे रहे थे, लेकिन ये भाई साहब मुझसे $20 चार्ज करेंगे, यानी $10. ठीक है यार, अब कोई दिक्कत नहीं है, करो यार चार्ज. तो मैं इन भाई साहब को 800 से 900 रुपये के आसपास दे रहा हूँ. तो दिन में अगर आप आओगे ना तो बॉर्डर तक जाने का आई थिंक $3 चार्ज करते हैं यहाँ पे जो ये टैक्सी वाले हैं. लेकिन वो शेयरिंग में जाते हैं, ऐसे नहीं पर्सनल टैक्सी. पर्सनलाइज टैक्सी आई थिंक आपकी $30 मांग रहा था एक बंदा. तो नहीं है भाई मेरे पास $30, तो वो चला गया. फिर किसी ने मुझे बता दिया था कि बस आने वाली. लेकिन यार पंगा क्या है कि अब मैं यहाँ पे ज़्यादा लेट कर दूँगा तो फिर मैक्सिको साइड भी मुझे आगे जो टाउन है उसके अंदर घुसने में पंगे होंगे. तो जितना जल्दी हो सके बॉर्डर पे ही पहुँचना चाह रहा हूँ मैं. तो मेरे पास ये बंदा बोला कि $25 माल, मेरे पास $20 ही है. पंगा क्या है, मेरे पास $20 का सबसे छोटा नोट पड़ा है, बाकी पड़े हैं मेरे पास. लेकिन वो मेरे को आगे मैक्सिको में चेंज करवाने हैं पैसे. क्या पता वहाँ पे बॉर्डर पे मुझे ATM मिले ना मिले, इसलिए मैंने बोला मेरे पास 20 का ही है सबसे कम. बोलता 20 ही है मेरे पास, इससे ज़्यादा नहीं है. बोलता ठीक है चल 20 में छोड़ दूँगा तेरे को. $20 इज इक्वल्स टू $10. तो $840 रुपये ले रहा है मेरे से बॉर्डर तक जाने के. ठीक है यार, अब इसको मैं मिल गया, इसकी दिहाड़ी ठीक ठाक बन जाएगी. How far are you going? हाँ, How far are you traveling? how far like in total or today? No, today. How far are you going? I want to go to Chotomale. Chetumal. Yeah. That's it. I want to stay there for 2 or 3 days, I think. And yeah, and then to Chichen Itza. Yeah.
So I will not find any like bus on the Mexican side. You have to catch a taxi. And how much they will charge? About 200 pesos. How much is 200 pesos? Maybe more than $20. 20 Belizean dollars. Maybe you can work with $20 with them, but I don't know if they will take it. Ah, but no buses. No, but In the daytime? daytime is. In the daytime, yes, okay. And is it safe on the Mexican side or no? Well, people say that no, but that depends where maybe you go or you have a special place in Chetumal. No, I will stay in hostel. The problem is I don't have internet also now. What? You can stay Where? In outside. on the Mexican side I can find hotels? Yes. Ah, that's ये भाई बेलीज और मैक्सिको के बॉर्डर पे पहुंच चुका हूं मैं और यहाँ पे है फ्री जोन बिटवीन मैक्सिको एंड यहाँ पे काइंड ऑफ ड्यूटी फ्री जोन बना रखी है बेलीज गवर्नमेंट ने थोड़े पैसे एक्स्ट्रा कमाने के लिए. That's the immigration? Okay, thank you. ठीक है यार, इन भाइयों ने छोड़ दिया. अब ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर सकता मैं. वो गाड़ी आती नहीं आती, कोई श्योरिटी तो थी नहीं. तो अब यहाँ पे इमिग्रेशन पे तो पहुँच गया हूँ. आई थिंक कहाँ यहीं पे क्लियर करना पड़ेगा ऑलवेज. ये देखिए भाई, यहाँ पे पैसे लग रहे हैं मेरे. $40 लग गए. $30 डिपार्चर फीस है और ये सब. भाई बेलीज का जो बॉर्डर क्रॉस था वो मैंने इमिग्रेशन क्लियर कर लिया है भाई. अब तक का मेरा सबसे स्मूथ इमिग्रेशन. सारे इमिग्रेशन को इसने पीछे छोड़ दिया है. दैट वे ओके, मुझे ग्रेसियस. तो यार बड़ा सही इमिग्रेशन रहा. और एक बात देखिए, मैंने जब भी मुझे लेडी इमिग्रेशन ऑफिसर मिलती है ना, वो यार बड़े ढंग से इमिग्रेशन करती हैं. बस बेलीज में मुझे लेडी इमिग्रेशन मिली थी ना कल वाली, जिसने मुझे एंट्री दी थी, वो बहुत ज़्यादा रूड थी. बाकी 99% टाइम पर जितनी भी लेडी मिली है ना, वो अच्छे से वो करती हैं. मेल कई बार नाटक करते हैं भाई, सच में देखा है मैंने ये. तो मैक्सिको इमिग्रेशन मेरा आसानी से हो गया. एक बात है, वो मैं उधर पहुंच के बताऊंगा. उन्होंने मुझे कुछ पैसे यहाँ पे भी पे करने चाहिए थे, लेकिन मैंने नहीं पे किए. मैं बोला मैं बाद में पे कर दूँगा. काम ही नहीं कर रहे भाई. हेलो. हाँ? No, it's off. No hablo español. Una revisión. ¿Ah? Abrir su mochila. Oh, passport. Okay. No, su mochila se va a revisar. ओ भाई साहब, नहीं भाई पैदल चला जाऊंगा मैं. मेरे को नहीं चाहिए टैक्सी. कहाँ से जाना होगा? ब्रिज क्रॉस कैसे होगा? यस. नो मैन, नो टैक्सी. नो टैक्सी. ओके भाई, नहीं चाहिए. नो. Walking. हाँ? It's okay, no problem. कर लूँगा भाई, मैं वॉक कर लूँगा. नहीं चाहिए मेरे को टैक्सी. साला यहाँ कौन ही मारने वाला होगा मेरे को. ये मैक्सिको में इनका पंगा बड़ा है भाई. मैक्सिको में इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. अभी क्रॉस ही नहीं हुआ. ये बंदा आगे आएगा, कंफर्म आएगा. वो और उधर बॉर्डर क्रॉसिंग पैदल चल के नहीं चला जाऊँगा मैं. टैक्सी और लूँगा इतनी ही दूर के लिए. भाई इन टैक्सी वालों पे इसलिए गुस्सा आता है मेरे को, सच में. कर लूँगा भाई, मैं अपने आप कर लूँगा बॉर्डर क्रॉस. उसकी ज़रूरत नहीं है मेरे को. कौन मारेगा मेरे को इस बॉर्डर पे रात को? ये भाई कंफर्म देख लो. ये नो ब्रदर, नो टैक्सी. थैंक यू. No hablo español. Cerrado, my friend. No hablo español. Where you from? From India. Está cerrado, closed. It's okay, I will walk, no problem. No puede salir, está closed. No problem, it's okay. Está closed. It's okay, man. Go. Te van a regresar. Return. Okay. Bye. Ahí te espero. Adios. भाई ये ना फ्री जोन है. तो और बेलीज वालों ने यहाँ पे कैसीनो वैसीनो बना रखे हैं. और इनके मेन कस्टमर कौन होते हैं? मैक्सिकन्स, जो यहाँ पे आते हैं. ये जितने भी उधर दिख रहा है, ये कैसीनो की ऐड चल रही है, देख लो. अभी तो कैसीनो बंद हो गए हैं. यही है ना यार. हाँ यही है.
एक ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा मेरे को। वो नो नो क्यों कर रहा था, कोई पंगा है क्या? ब्रिज के ऊपर कौन से कार्टेल बैठे हैं भाई? ऐसी है भाई मेरी मेक्सिको के अंदर एंट्री। रात के घने अंधेरे में दोनों तरफ जंगल है और चल रहा हूँ बेलीज का इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद। भाई कोई बंदा डंकी ना भी होगा ना तो भी वो समझने लग जाएगा भाई ये डंकी मार रहा है रात को मेक्सिको के अंदर। फाइनली जो मेरे सिम कार्ड थे उसके अंदर नेटवर्क आ चुके हैं। तो भाई एयरटेल ने यहाँ पे मेक्सिको का नेटवर्क पकड़ लिया है। तो भाई एयरटेल वाले तुम बेलीज के अंदर काम क्यों नहीं करते? अगर तुम बेलीज के अंदर काम करते तो मैं एक दिन और रुक जाता बेलीज में। ये रातों रात नहीं भागना पड़ता मुझे। अंधेरी रात थी भाई साहब। वैसे अगर डायरेक्ट बस मिल जाती ना मेरे को बॉर्डर की बेलीज सिटी से, वो $10-15 ही लेते, $10 लेते सॉरी, और $40 मैंने बॉर्डर के ऊपर पे कर दिए बेलीजियन डॉलर। तो मान लो $25 तो मेरे आज इसके बॉर्डर क्रॉस करने पे ही खर्च हो गए हैं, 25 से 30 US डॉलर। अब यहाँ पे वो मना करते तो कि नहीं भाई यहाँ से आप क्रॉस नहीं कर सकते। और भाई ब्रिज के ऊपर मुझे लग नहीं रहा लाइट भी होगी। बंदा डरा हो ना तो डरा दें बंदे को सच में। 1 घंटा क्रॉसिंग लग रही है यार, यूँ लग रहा है किसी गांव में आ गया हूँ मैं। लग तो रहा है वो आ गया है। ये देख पा रहे हो ना, ये मेरे हिसाब से एक टाइम पे कैसीनो खुला था लेकिन भाई चला नहीं होगा तो बंद कर दिया है, लेकिन एंट्रेंस का ग्रैंड बना रखी है। ये भाई कैसीनो एक और यहाँ पे बॉर्डर कर देते, इतना आसान वो बनाई है जगह। आप जाओ इसको पैदल चल के। वो मैक्सिको वाले पक्का मेरे को बोलेंगे कि भाई आजा साइड में लग जा। इन्होंने मुझे साइड में लगा दिया 10 मिनट मेरा पासपोर्ट चेक करने में। कई बार यार ये जो डंकी वाले बंदे हैं ना, और जो इलीगल एंट्री मारते हैं कहीं पे भी, मैं ये खास करके इंडियंस को बोल रहा हूँ भाई, तुम्हारे कारण यार पासपोर्ट की ऐसी धज्जियाँ सी उड़ी हुई हैं। पहले अपना पासपोर्ट इतना स्लो था और आजकल भाई हर बंदा है ना ऐसे निगाहों से देखता है। और कंफर्म है ना मैक्सिको में घंटा मुझे कोई टूरिस्ट नहीं समझेगा। तो वो एक शक की निगाहों वाली चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं डंकी वाले बंदों के कारण। और जाके वहाँ फुद्दूसी जॉब करनी है इनने। अगर इतने ही चैंपियन हो तो भाई इंडिया में रह के उखाड़ लो कुछ। भाई जो मैं लीगल वे में जा रहे हैं उनको नहीं बोल रहा हूँ यार, ये कर रहा हूँ भाई बॉर्डर क्रॉस। ये ब्रिज आ गया है, क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? फहीज विया। अरे भाई तारे मस्त दिख रहे हैं। हैव अ नाइस ट्रिप, विल बी वेटिंग फॉर योर रिटर्न। नीचे ना गल जाऊँ, इसमें साइड पे चल देता हूँ यार। ये लो लिखा आ गया वेलकम टू मैक्सिको। भाई सबसे खतरनाक कंट्री है ये मेरे को लग रहा है इस ट्रिप की। ये देखो वेलकम टू मैक्सिको। मैं तैयार हूँ बेटा साइड में लगने के लिए। बेटा आजा दीपांशु, डॉक्यूमेंट्स निकाल, सब चीज़ चेक करा वगैरह। पासपोर्ट मेरा 2-3 बार स्क्रैच करके देखेंगे, फिर कहीं ना कहीं घूस लेने की कोशिश करेंगे। सब के लिए रेडी हूँ। अब एंट्री हो गई है इन मैक्सिको। मिर्ज़ापुर में बोलते हैं ना, चल मैक्सिको चलते हैं। तो भाई मैक्सिको के अंदर एंट्री हो चुकी है और यहाँ पर मैं अभी खाना खाने वाला हूँ। तो खाने के लिए मैं पे करूँगा बस टाकोस खा रहा हूँ मैं, 4 चिकन टाकोस। मेरा जो बेलीज की करेंसी उससे पे करने वाला हूँ। ठीक है यार, अब होटल में जाता पता नहीं वहाँ पे खाना मिलता ना ही मिलता। ठीक है इनके पास ही खा लूँगा मैं। 3 टाकोस या सी। इनको यहाँ पे ये स्पेनिश नहीं आती। बाकी मैंने होटल पूछा है तो उन्होंने बोला कि यहीं पे रुक जाओ आप, जितने मैं टैक्सी के पे करूँगा ना उतने में मुझे यहाँ पे होटल मिल जाएगा और फिर कल सुबह मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। सही है। अब होटल के अंदर वाईफाई तो शायद हो ही जाएगा। ये भाई मेरा आज का खाना, एवोकाडो है साथ में और ये पिकांते स्पाइसी सॉस। पिकान हाँ, ये अलग अलग टाइप के स्पाइसी सॉस हैं। तो ये डाल के मैं टाकोस खाने वाला हूँ। अब बॉन प्रोवेच है भाई। लग तो अच्छे रहे हैं यार। बाय बाय, आदियस। भाई खाना मेरा हो गया है। खाना है कि लगे मेरे $10 यहाँ पे। $10 अपने जो बेलीज के डॉलर थे, तो $10 कितने हो गए? 5-8 जब 40, 400 रुपये का हो गया। ठीक है यार, अब बेलीज की करेंसी थी मेरे पास, इनके पास कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा था और इनका आने मेरे को खाना थोड़ा सही लग रहा था। खाना खा के स्वाद भी आ गया था, एकदम हेल्दी टाइप था। टाकोस थे ना, वो बाहर रोटी टाइप थी और अंदर चिकन की फीलिंग, और चिकन एकदम हेल्दी। ये भाई होटल भी एक ठीक ठाक सा बता दिया लोगों ने मुझे, ज़्यादा महंगा तो नहीं है। आई थिंक वो वाईफाई मिल जाएगा यार। एल काबिर मैक्सिकानो।
ये सारा स्पीकर अपने आप ऑन हो रहा है, बंद हो रहा है, ऑन हो रहा है, बंद हो रहा है। जिस सिटी में पहले मेरा जाने का प्लान था ना, चेतुमाली, 10 किलोमीटर रह जाती है यहाँ पे। और रात को तो आपको पता ही है टैक्सी वाले इतने किलोमीटर के लिए कितना चार्ज कर लेंगे। होटल मोरान, ये भाई रूम मिला है हमें। सही है यार। ये पंखा चलेगा या नहीं चलेगा? तो दीपांशु जी, आप कैसा फील कर पा रहे इतने पैसे फूकने के बाद? ये रूम शेयर कर रहा हूँ किसी के साथ। एक ट्रैवलर भाई साहब मिल गए थे, वो बेलीज जा रहे थे, वो कह रहे थे चलो हम दोनों एक साथ रूम शेयर कर लेते हैं। मैं ठीक है यार, 2 बेड है वैसे। तो यहाँ पे वो भाई साहब अभी आ रहे हैं। और ये रूम वैसे है 550 पैसों का। 550 पैसों हो जाते हैं आपके लगभग 2200 रुपये। तो वरना मुझे पूरे 2200 खुद को पे करने पड़ते। उनके साथ अब मैं रूम शेयर कर रहा हूँ, तो ये हम दोनों के लिए सस्ते में पड़ गया। बस सही है, ये बढ़िया, ये अच्छा है वीडियो। ये भाई बैंक के स्लिप आज बहुत पैसे लग गए यार। आज मैक्सिको से रिलेटेड कोई बात करनी थी, लेकिन अब मेरे सच में हिम्मत नहीं है। मैं नींद आ रही है मेरे को। आज सुबह ना वो OTP के चक्कर में सुबह जल्दी उठ गया था मैं, लेकिन वो उस टाइम काम हुआ नहीं। कल सुबह बात करता हूँ आप लोगों से। तो मैं आपको बता देता हूँ अभी मैं कहाँ पे हूँ। मैं एकदम बॉर्डर से 300 मीटर आगे मुझे एक हॉस्टल मिला है, वहीं पे रुका हुआ हूँ। और इस हॉस्टल में काफ़ी लोग रुकते हैं। इधर ट्रक व्रक खड़े हैं, लोगों ने अपने ट्रक व्रक खड़े कर रखे हैं। तो बस यही है, कल सुबह मिलता हूँ आप लोगों से। फाइनली मैक्सिको के अंदर आपके भाई की एंट्री हो चुकी है। The next day. गुड मॉर्निंग भाई और बहनों, फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। कल रात को कर ली थी मैंने मैक्सिको के अंदर एंट्री, और ये है भाई मेरी मैक्सिको के अंदर सबसे पहली टाउन, बेलीज कोरोजोल पैन अमेरिकानो। ये क्या है पैन अमेरिकानो का? यहाँ से अब मैं उधर जा रहा हूँ, खाना खा के आऊँगा और बस का पता करूँगा कि यहाँ से जो नेक्स्ट टाउन उसके लिए बस मिल जाएगी। सिम कार्ड खरीदना है, बाकी सारी चीज़ें। और मेरे पास जो 50 बेलीजियन डॉलर्स पड़े हुए हैं उनको भी मुझे एक्सचेंज कराना है मैक्सिकन पैसों के अंदर। 50 के आसपास हैं, तो लगभग 2000 के आसपास हो ही जाएंगे यार। वियन वियाहा। कल रात को जिस जहाँ पे मैं खाना खा गया तो वहीं पे जा रहे हो। उनका खाना मुझे सही स्वाद लगा था और सही भी था। अरे मैक्सिको में भी अपने ऑटो चल रहे हैं, गजब। गंदगी इधर भी है यार। आई थिंक ये कोई इतनी फेमस बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं है। चिल सा ही माहौल है भाई मैक्सिको के अंदर अभी। तो अभी जस्ट खाना खा गया है, खाना भीड़ ज़्यादा ही थी यार वहाँ पे। मेरा वीडियो बनाने का भी मन नहीं किया सुबह सुबह। तो सुबह सुबह आपके भाई ने टाकोस खाए हैं। Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. SIM card? SIM? SIM card para Telcel. No, mi amor, no vendo en el ISA o en el Willis. Farmacia. Pharmacy? Sí, ISA. ISA. And you speak English? Maybe. So I can find which is the best SIM card for Mexico? Telcel? Telcel. Is the best. The best. Okay. Muchas gracias. De nada. Buenos días. Yeah. सिम कार्ड ले ही लेते हैं यार कहीं से। कनकून जो फेमस जगह है ना यहाँ पे, कनकून, वो है 369 किलोमीटर यहाँ से। और चेतुमल जो जिस सिटी में मैं जाने वाला था वो है 10 किलोमीटर यहाँ से। अरे हाँ, इसमें मिल जाएगा मेरे सिम कार्ड। इस क्लोज मुझे Hola, buenos días. You have SIM card? Telcel? ¿Recarga? SIM. No, no vendemos. So hablo English? No. Where I can find Telcel? El chip. Yes, sí. No, nosotros no vendemos. Chetumal? Farmacias? Aquí en el súper al lado puede preguntar. Sí. Aquí al lado. Okay. Muchas gracias. यार सच्ची बताओ, मुझे अभी तक अच्छी फीलिंग आ रही है मैक्सिको के अंदर। लोग हैं ना मुझे कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली मिल रहे हैं। तो अभी ये $50 का जो नोट पड़ा है ना मेरे पास, इसको एक्सचेंज करा लेते हैं। ये $50 है। Hola, buenos días. You have exchange? ¿Pesos? Yeah, sí. Sí. ¿Un cuánto? 8.20. No. 7.80. ¿7? 80. Like Siete, Not 8? 7.80. No. नोट 8? ओके भाई बहुत गंदा रेट दे रहे हैं यार। ओके थैंक
करा लिए भाई मैंने। रेट तो उतना ठीक नहीं मिला, लेकिन अब ठीक है। अगले शहर तक पहुंचने के लिए किसी से काम चलाना पड़ेगा। मैक्सिकन पैसोस, एक मैक्सिकन पैसोस की वैल्यू भी भूल गया मैं कितनी होती है अपने इंडियन करेंसी में। हिसाब लगाने दो, बेलीजियन डॉलर होते हैं एक मैक्सिकन पैसोस में 9, और 1 मैक्सिकन पैसो इज इक्वल्स टू ऑलमोस्ट इंडियन रुपीज़ में 4 के बराबर होता है। तो जो अभी मैंने खाना खाया है वो मेरे लग गए 400 रुपये खाने के। तो उतना महंगा नहीं है मैक्सिको एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज़। हाँ, अपने इंडिया के कंपेरिजन में काफ़ी महंगा लगेगा आपको, लेकिन उतना महंगा भी नहीं है, अफोर्डेबल है। बेलीज़ बहुत महंगा लगा था मुझे, और बेलीज़ है भी थोड़ा एक्सपेंसिव। अब होटल में जाके मैं सामान पिक करूँगा, थोड़ी देर वहाँ पे बैठूँगा, और उसके बाद भाई चेतुमल के लिए बस पकड़नी पड़ेगी। मैं अभी सिम खरीदने गया था ना, वहाँ पे बंदा बोलता है कि भाई देखो हम तेरे को नया पैकेज दे सकते हैं, लेकिन नई सिम कार्ड तेरे को ना आगे जाके खरीदनी पड़ेगी चेतुमल में। Buenos días, el estado de Quintana Roo। तो भाइयों और बहनों, फिर से अब जो मुझे पता करके आना था बस का, वो सब पता कर लिया है मैंने। यार आजकल धीरे धीरे ना, जब भी अपने ऑटो देखता हूँ, इंडियन ऑटो देखता हूँ, इंडियन बाइक देखता हूँ, अंदर से खुशी तो आती है कि बेटा नहीं, धीरे धीरे हमारा इन्फ्लुएंस जा रहा है दुनिया के ऊपर, और आगे ऐसा बढ़ता ही रहेगा। लेकिन कुछ चीज़ें देख के थोड़ा दुख भी होता है कि नहीं यार, कुछ चीज़ें हमें चेंज करने की ज़रूरत है। चलो उनको गोली मारो। तो भाई यहीं पे मेरी जो सेंट्रल अमेरिका की जो ट्रिप है वो ख़त्म होती है। हाँ, ट्रिप के स्टार्टिंग में मेरे को सच में मज़े नहीं आ रहे थे। मैं क्या ही झूठ बोलूँ आप लोगों से, वो आपको वीडियो में दिख ही गया होगा, मैं खींच रहा था। फिर मेरे को मज़े आने स्टार्ट हुए थे निकरागुआ से। निकरागुआ के बाद फिर से ही मज़े आए मेरे को। बेलीज़ में तो आपको पता है कुछ कर नहीं पाया। वैसे आज रात को 2 बजे उठ के ना मैंने वो OTP वाला काम किया है, लेकिन वो हो गया। जिस काम के लिए मैं इतना भाग के आया था, वो सारी चीज़ें की वो सक्सेसफुल रही। और अब यहाँ से भाई बस पकड़ के चेतुमल पहुँच जाऊँगा, और चेतुमल से फिर वालादोइद इज़ द टाउन जहाँ से आप चेचेन इत्सा जा सकते हो। और वालादोइद में भाई अपने एक इंडियन बड़े यूट्यूबर हैं, उनसे भी मिलने वाला हूँ। उनसे मैं पहले एक बार रशिया में भी मिला था, लेकिन उस टाइम मैंने शायद भाई के साथ वीडियो नहीं बनाई थी। उस टाइम तो मैं 3 बंदों से मिला था। एक थे अपने उमा भाई, एक थे अपने एक जिनसे मिलने वालों, उनका नाम मैं बताऊँगा नहीं, और एक और भाई थे, उनका नाम भूल गया यार मैं। वो मुझे वहीं पर मिले थे याकुत्स्क में लास्ट ईयर। क्या घर जल गया है क्या भाई? जल गया, जला दिया गया है। मुझे लग रहा था मैक्सिको ये वाला पार्ट थोड़ा सेफ़ होगा, लेकिन आप सेंट्रल अमेरिका में कहीं पे भी चले जाइए। अब तो ये देख लिया, सेंट्रल अमेरिका या फिर यहाँ पे मैक्सिको में भी दुकानों के बाहर आपको ग्रिल मिल ही जाएंगी। मैं नहीं कह रहा कि बहुत अनसेफ हैं, लेकिन चीज़ें थोड़ी शेडी हैं यहाँ पर। तभी छोटे छोटे दुकानदार है ना, दुकानों के बाहर ग्रिल लगा के रखते हैं। ये सुपरमार्केट है। ओला मेगा। तो तभी मैं सोच रहा था कि यहाँ पे भाई लोहे का बिजनेस करे तो अच्छा चले। अब ये देखिए आप, इस टाइप की ग्रिल। बॉर्डर उधर सामने ही है। बॉर्डर के ऊपर मेरे साथ कल नॉर्मल सी चीज़ें हुई थी। जो लेडी थी उन्होंने मुझसे कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे, बहुत आसान, बहुत ज़्यादा आसान था मेरा इमिग्रेशन। बोला बाकी शुभम ने मुझे ये एक बात जताई है कि भाई कुछ भी कर लेना, मैक्सिको पुलिस से बच के रहना, सबसे गंदी पुलिस है यहाँ की। अमीगो चेतुमल। तो देखिए वो आगे बॉर्डर है गया, और इधर ही अपने बस मिल गई है। और सुबह मैंने इसी पे दुकान पे खाना खाया था। तो ये है भाई जो इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस था, वो भी सही था। बेलीज़ साइड में मेरे पासपोर्ट को थोड़ी देर चेक किया था, लेकिन मैं मैक्सिको के लिए रेडी था कि यार मेरा पासपोर्ट थोड़ा लंबा चेक होगा, लेकिन जो लेडी थी बड़ी सही थी यार। और दूसरा, हाँ, मुझे मैक्सिको के अंदर है ना एक फ़ीस पे करनी पड़ती है अगर आप यार। वो भाई रेडी हो गया, चलो चलते हैं यार। अब निकल ही रहे हैं, चलो अब। अरे कोरोना की फैक्ट्री मेरी सबसे फेवरेट बियर है भाई, मैक्सिकन है। और सुजुकी का शोरूम, इसका मतलब यहाँ पे जिमनी भी होगी। अरे हाँ, जिमनी है भाई। भाई पहुँच गया हूँ मैं सबसे पहले टाउन में, चेतुमल। चौतेकल नहीं, चेतुमल। और अब चेतुमल में यहाँ से मैं पहले सिम कार्ड खरीदूँगा, फिर आगे के लिए मेरे बस स्टैंड और वो सब देखूँगा। बस स्टैंड के ऊपर ही उतारे एक भाई ने मुझे यहाँ पे। पूछता हूँ इनके पास बस है या नहीं।
उन आंटी के पास जो खाया ना तगड़ा ही स्पाइसी था, मुंह के ऊपर है ना वो लग गई है। आप में से नागालैंड कौन कौन लोग गए हैं? नागालैंड और मणिपुर के अंदर किंग चिली नाम से एक मिर्ची बहुत फेमस है, और आई थिंक वो अपने असम, नागालैंड, अरुणाचल, जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ना मोस्टली वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं खाना, ज़्यादा तेल वेल नहीं खाते हैं, वो मिर्ची बहुत ज़्यादा डालते हैं। मतलब बोलना नहीं जा रहा भाई, मेरे होठों के ऊपर ऐसे है ना जलन सी हो रही है, मैंने ज़्यादा ही सॉस डाल दिया था। तो ऑलमोस्ट वैसे सी मिर्ची आपको मैक्सिको में भी मिलती है। मैक्सिको वाले क्लेम करते हैं कि उनकी मिर्ची दुनिया में सबसे हॉट है, और अपने नागालैंड वाले भाई बहन बोलते हैं कि नहीं भाई उनकी मिर्ची सबसे ज़्यादा हॉट है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि भाई कौन सी मिर्ची सबसे ज़्यादा हॉट है दुनिया में, मुझे उतना आइडिया नहीं है। बाकी भाई ये वाली जो बस है वाला दौलत, इसमें जाऊँगा मैं। 5 घंटे की मेरी राइड होने वाली है। अभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। 5 घंटे की राइड के लिए मैंने टिकट खरीदी है 1200 रुपये की, 1200 रुपीज़, तो विच इज़ ओके। AC बस है तो इतना तो मान नहीं सकते हैं। जितना ट्रांसपोर्टेशन अगर आप बाकी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ में देखोगे ना तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन मेरे हिसाब से सस्ता है। अब मैक्सिको के अंदर मुझे पता नहीं है कि वो जो चिकन बसेस अब तक मैं ट्रैवल कर रहा था बेलीज़ में, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, एल सल्वाडोर, होंडुरस, वो बस यहाँ पे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी वो मुझे आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि पहला ही दिन है यार। तो आज मैं वाला दौलत पहुँच के फिर धीरे धीरे मैक्सिको के साथ फ्रेंडली होने वाला हूँ। मैक्सिको से मैं एग्जिट करूँगा सैन डिएगो में। आई थिंक 1 तारीख से मुझे पहले पहुँचना पड़ेगा। बस निकल पड़ी है भाई, और 5 घंटे अब अगले इस बस के अंदर ही बीतने वाले हैं, चेतुमल से वाला दौलत। वैसे ये देखिए भाई, ये है मेरा मैक्सिको के एंट्री का स्टैम्प, ये वाला। भाई अब एक मार्केट में हूँ मैं, और यहाँ पर मुझे विड्रॉ करने हैं, विड्रॉ नहीं, मुझे सिम कार्ड ख़रीदनी है। बस मुझे मिल गई है जहाँ पर मुझे जाना है। आप पूछते हैं यार कितने की सिम मिल जाएगी। Hola. Buenas. ¿New SIM card? ¿Vale? Telcel. No lo entendí inglés. 9 no. No. Where? ¿Dónde? ¿Dónde es the SIM card? Dentro del mercado. ¿Mercado? Sí. ¿Telcel? Sí. Muchas gracias, amigo. ¿Dónde es? मतलब where is? 9 new SIM. ये यहाँ का मार्केट है भाई। सिम कार्ड खरीद के ना मैं ऑनलाइन ही टिकट खरीद लूँगा। यहाँ पे कैश ले रहे हैं बस, और कैश मेरे पास थोड़ा ही बचा है। वहाँ पे ओला दौलत में जाके विड्रॉ कर लूँगा फिर। 300 पैसे की टिकट है। मैक्सिको मस्त लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मज़े आएंगे मैक्सिको के अंदर ट्रैवल करने में। खाना भी मस्त है, सुबह सुबह खाना खाए मस्त एकदम मज़े से आ गए। इंडिया की याद आ गई मुझे। ओला Telcel. Ah, sí. Sobre esta calle hasta abajo. Muchas gracias. सिम मिल जाए यार, पंगे ना हो बस। सिम के लिए मुझे पे करना पड़ेगा कार्ड से, और बाकी के लिए मुझे कैश देना पड़ेगा। कोई नहीं भाई, अब यही, और कोई चॉइस नहीं है मेरे पास। 720 रुपये का पड़ा है मुझे। 80 की सिम कार्ड आ रही है और 100 रुपये का इंटरनेट आ रहा है, 2.5 GB। ऐसे ये दुकान में आया हूँ भाई मैं। तो भाई आपके भाई ने सिम कार्ड ले लिया है। अब एक कैफ़े में बैठता हूँ और उसके बाद आगे का प्लान जो है वो डिसाइड करता हूँ। जो बस है वो 2 बजे निकलेगी यहाँ से, तब तक मेरे पास टाइम है। ¿Dónde compró su cámara? ¿Dónde compró la cámara? No hablo español. ¿Hablo inglés? No. No. ¿Cómo te llamas? Christopher. Mucho gusto, Christopher. Sorry. Lo siento. भाई तो भाई ये मेरी मैक्सिको के अंदर एंट्री फाइनल। सिम कार्ड ले लिया है। जो टाउन है चेतुमल, वहाँ पहुँच गया हूँ मैं। और जो इमिग्रेशन वाला एक्सपीरियंस था वो नॉर्मल था, कुछ ऐसा खास मुझसे पूछा नहीं। बस इमिग्रेशन जो लेडी थी उन्होंने मुझसे ये बोला था कि यार अगर आप मैक्सिको में 7 दिन से ज़्यादा रहते हो तो ये आपको $50 के आसपास, 700 मैक्सिकन पैसोस के आसपास एक टैक्स पे करना पड़ेगा। वो आप अभी पे करोगे या फिर एग्जिट के टाइम पे करोगे। तो उन्होंने बोला कि अगर आप 7 दिन से कम रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके इसके ऊपर इमिग्रेशन कार्ड दिया है मुझे, अराइवल कार्ड, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मेरे पास सिर्फ 7 दिन की वैलिडिटी है। अगर मैं उससे ज़्यादा रहता हूँ मैक्सिको के अंदर, तो जब मैं एग्जिट करूँगा मैक्सिको में, जब मैं USA के अंदर एंटर करूँगा, उस टाइम मुझे $50 के आसपास पे करने पड़ेंगे। मैंने बोला कि आप एक बार यही कर दो। और यार ये वाला मुझे पता नहीं था। वैसे नवंकुर के साथ ये स्कैम हो गया था एक, जब नवंकुर बेलीज़ के अंदर एंट्री कर रहा था। इवन आई थिंक परमवीर जब बेलीज़ के अंदर एंट्री कर रहा था, उन दोनों को पे करना पड़ा था।
लेकिन मैंने अभी तक पे नहीं किया क्योंकि मैं एग्जिट नहीं हो रहा, मैं एंटर हो रहा हूँ। एंटर के टाइम पे मुझसे मांग लिए हैं। अब मैं ये देखता हूँ कि जब मैं यूएसए के अंदर एंटर करूँगा तो उस टाइम मुझसे वो पैसे मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, ये वाला एक बड़ा सीन है। बाकी भाई अब तक सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं। मैंने सिम कार्ड खरीद ली, सिम कार्ड के मैंने पे किए 800 रुपये के आसपास, जिसमें अनलिमिटेड व्हाट्सएप, अनलिमिटेड इंस्टाग्राम, बट बाकी अगर चीज़ें मुझे यूज़ करनी है तो उसके लिए मुझे बहुत कम डेटा मिला, 1.5 GB। तो देखते हैं कि 1.5 GB में कैसे हो पाता है, कैसे। मेरे को लग रहा है और ख़रीदना पड़ेगा मुझे। अब यहाँ पे यही पैक था। ओला अमिगो। भैंस की एक बंदी आती है, एकदम से ताली बजाती है। मैं डर गया कि भैंस की ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे इन दीदी के पास एक कॉफ़ी पी रहा हूँ और उसके बाद भाई जो अपनी बस की टिकट विकेट है वो बुक करके आगे तरफ निकल जाऊँगा। तो भाइयों और बहनों, वेलकम टू मेक्सिको। और बाकी भाई इस वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ ख़त्म। मेक्सिको के अंदर एंट्री सब फिनिश, और यहीं पर मेरी जो सेंट्रल अमेरिका की ट्रिप है वो भी ख़त्म होती है। अब एक नई कंट्री को मैं अलग तरीके से एक्सप्लोर करूँगा। मेक्सिको में मुझे लग रहा है सच में मज़े आने वाले हैं। मैं कुछ ज़्यादा फ्रेंडली हो रहा हूँ, मैंने बैग वैग को ऐसे ही रख दिया है। चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़। मिलता हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ।